بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی طارق مسعود کی نئی ویڈیو آئی ہے اپنے دفاع کے اوپر۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ توبہ کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، لیکن انہوں نے توبہ کی بجائے پہلے ایک رجوع انہوں نے ریکارڈ کروایا، اس کے اندر غلطی کی، پھر دوسرا کروایا، اس کے اندر بھی غلطی۔ اب یہ ڈٹ گئے ہیں اپنے کفر کے اوپر اور توہین رسالت کے اوپر ڈٹ گئے ہیں کہ اور جناب ویڈیو آ گئی ہے سر تن سے جدا، اور اس کے اندر مزید اور بلینڈر مار دیے۔ یعنی پہلے تو یہ شاید تھوڑا چھوٹا کفر تھا، اب مزید اور کفر پہ کفر یہ کر رہے ہیں اور توہین پہ توہین کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ طریقہ واردات اختیار کیا ہے کہ جناب اپنی توہین اور گستاخی کو چھپانے کے لیے، جو انہوں نے توہین کی تھی کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کو اللہ کی وحی لکھوائی کچھ اور تھی تو کاتب وحی نے لکھی کچھ اور، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو قرآن ہے یہ وہ کاتبین وحی والا قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ مطلب یہ دیکھیں کہ یہ ڈائریکٹ اللہ کے کلام کے اوپر، قرآن کے اوپر حملہ ہے اور توہین ہے۔ اور دوسرا انہوں نے بیچ میں یہ امی کے لفظ کے اوپر گفتگو کی تھی، اور علماء کرام اس کے اوپر ان کو پکڑ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے۔ بلکہ اب یہ جو ویڈیو آئی ہے نا سر تن سے جدا، یقین جانے اس نے پچھلی ویڈیوز کا بھی ریکارڈ توڑ دیا، اور اتنی فاش اغلاط انہوں نے کی ہیں، اور جناب اپنے کفر توہین کو چھپانے کے لیے انہوں نے مزید اور توہین اور کفر کے انبار لگا دیے۔ تو ہم اب تدریجاً آہستہ آہستہ ان کی وہ جو اغلاط ہیں، جو کفریات ہیں، جو مغلظات ہیں، ان کا مواقبہ کرتے ہیں اور اس کی خبر لیتے ہیں۔ تو اس میں نبی نے اپنی بارے میں بتایا کہ ہم امت یعنی من حیث القوم، عرب میں لکھنا پڑھنے کا نہیں آتا تھا ان کو، مخصوص لوگ ہوتے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ تو اگلی حدیث پہلی حدیث کے مصداق کو متعین کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم امی ہیں، نہ ہم لکھنا جانتے ہیں نہ ہم پڑھنا جانتے ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح ہے مسلم میں 1080 صراحتاً بھی ہے، جو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا امت امیت لا نکتب ولا نحسب تب ولا نحسب تب ولا نحسب تب ولا نحسب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم امی امت ہیں، نہ ہم لکھنا جانتے ہیں نہ ہم حساب و کتاب کرنا جانتے ہیں۔ اچھا جی، یہ پہلی ویڈیو اس موضوع کے اوپر میں لے کے آ رہا ہوں۔ اب انہوں نے جناب امی کے لفظ کو ثابت کرنے کے لیے ایک مسلم شریف کی حدیث لی ہے جو کہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ تو میں یہاں پہ بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور حدیث نمبر ہے 1913۔ اچھا، یہ اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ وہاں پہ لفظ تھا، جملہ تھا انا امت امیت لا نکتب ولا نحسب، اس کو لے کر کے یہ امی کے لفظ کو ثابت کر رہے ہیں۔ اول تو انہوں نے یہ عبارت ہی غلط پڑھی ہے، نحسبو کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ نحسبو ہے۔ حاسبہ یحسبو الگ ہے، اسی طریقے سے حاسبہ یحسبو الگ ہے، اور حاسبہ یحسبو الگ ہے۔ اور یہ ایک چیز ہے، ایک لفظ ہے جو کہ 2-3 بابوں سے آتا ہے۔ باب حاسبہ یحسبو سے، سامیہ یسمعو سے، اور ناصرہ ینصرو سے آتا ہے، اور تینوں بابوں کے اندر اس کا ترجمہ اور مفہوم الگ ہو جاتا ہے۔ اور یہ عبارت پڑھ رہے ہیں حاسبہ یحسبو، لا نحسبو انہوں نے پڑھا ہے، تو وہاں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے گمان کرنا، اور باب ناصرہ ینصرو کے اندر جا کے اس کا ترجمہ بنتا ہے گننا، شمار کرنا۔ اور یہاں پر گننا اور شمار کرنے کے معنی کے اندر ہے، اور انہوں نے باب کوئی اور بول دیا ہے، ترجمہ کوئی اور کیا ہے، تو یہاں سے بھی ان کی جہالت ٹپک رہی ہے کہ یہ کوئی مفتی شفتی کوئی نہیں ہے، اور ایسے بس دیوبندیوں نے ان کو اپنا مفتی اعظم پاکستان اور مفتی اعظم عالم اسلام بنایا ہوا ہے۔ تو یہ تو ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی بالکل جاہل سا آدمی ہے۔
और इसकी बातों का दिफा ना करें। ये इतने इतने बड़े ब्लेंडर मार रहा है और तुम लोग पागलो दिफा कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये करनी है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर जमा का सीगा इरशाद फरमाया है, इन्ना। असल में ये था इन्ना ना। तो जब इन्ना ना ज़मीर मंसूब मुत्तसिल सीगा जमा मुतकल्लिम जब इसके साथ मिली है तो वो इन्ना बन गए। ठीक है जी। तो यानी इसको मजमूई तौर पे ये तर्जुमा बनता है कि बेशक हम। ठीक है, इन्ना ना बेशक हम। तो इन्ना जब बनेगा तो वो फिर जनाब ये जमा का सीगा यहाँ पर हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अच्छा, ये पहला नुक्ता तो ये है कि ये जमा का सीगा। फिर आगे भी जमा है, उम्मतुन उम्मियतुन, उम्मी उम्मत। अब उम्मी उम्मत ये कौन सी है? अब यहाँ पर उलमा कराम की वजाहतें मौजूद हैं कि नंबर एक तो ये कि ये नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मते नबीयीन जो है ना उससे खिताब कर रहे हैं कि हमारे जो सारे नबी हैं वो उम्मी होते हैं, वो पढ़े लिखे, यानी अल्लाह ने उनको पढ़ाया होता है, दुनिया के पढ़े लिखे नहीं होते, दुनिया में उनका कोई उस्ताद नहीं होता। तो पहली तो जी तो उलमा कराम की यहाँ पर ये है। ठीक है, और यही ज़्यादा मोतबर है और मुतहक्कक है। दूसरी जो ये मुफ्ती तारक मसूद कह रहे हैं ना, ये तो तौहीन पर बनता है इसका तर्जुमा। और यहाँ पर तो पहली तौहीन जो तुमने की थी उससे भी बड़ी तौहीन बन गई है। यहाँ पे मुफ्ती तारक ये कह रहा है कि अरब चूंकि वो उम्मी हैं, अनपढ़ हैं और जाहिल हैं, तो इस वजह से नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ इशारा करके कहा है कि हम सारे मतलब अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, तो उसके अंदर माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नकले कुफर कुफर ना बाशिद, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं। ये तो डबल तौहीन हो गई है। अच्छा, यहाँ पर हम कुरान पाक आपके सामने जिक्र कर रहे हैं, सूरा अल बकरा है और आयत 78 है, और उसके अंदर अल्लाह पाक इन उम्मियों का जिक्र करता है, यानी अरब के जो अनपढ़ जाहिल लोग हैं उनका जिक्र करता है। और अल्लाह इरशाद क्या फरमाता है, व मिनहुम उम्मियून ला यालमूनल किताब, कि ये वो, और अल्लाह फाज़िल बरेलवी इसका तर्जुमा क्या करते हैं, और इनमें कुछ अनपढ़ हैं जो किताब को नहीं जानते। अब ये लफ्ज एक है उम्मी का, दो जगह इस्तेमाल हो रहा है, एक मुशरिकीन के लिए, एक नबियों के लिए। क्या ये तर्जुमा हर जगह एक ही होगा? क्या एक ही तर्जुमा होगा? जैसे मकर का लफ्ज है वो अल्लाह ने अपने लिए भी इस्तेमाल किया और इन उम्मियों के लिए भी, इन जाहिलों के लिए भी, इन मुशरिकीन के लिए भी इस्तेमाल किया। कि तो क्या तर्जुमा तुम ये करोगे? सूरह आले इमरान आयत 54 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, व माकरू व माकर अल्लाह, और अल्लाह तर्जुमा ये करते हैं कि और अल्लाह ने इनके हलाक की खुफिया तदबीर फरमाई, और वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतर छुपी तदबीर वाला है। यह अल्लाह ने कंजुल ईमान के अंदर तर्जुमा किया। और तुम लोगों ने तो तर्जुमा इसका भी ये किया था कि उन लोगों ने भी फरेब किया, मकर किया, तो अल्लाह भी मकर करता है और अल्लाह बेहतर मकर करने वाला और फरेब करने वाला है। तुम लोगों के तर्जुमे भरे पड़े हैं देवबंदियों के, जाके उठा के देख लें। अल्लाह फाज़िल बरेलवी ने ये अल्लाह की शायाने शान ये तर्जुमा किया। इस तरीके से और बहुत से अल्फाज हैं कि जो कि लफ्ज़ एक होता है वो अल्लाह के लिए या नबी के लिए इस्तेमाल होता है, और साथ ही वो काफिरों और मुशरिकों के लिए, गुस्ताखों के लिए आता है, तो तर्जुमा अलग होगा, तर्जुमा एक नहीं होगा, तर्जुमा अलग होगा। ये कायदा कुलिया है। और देखें ना, अल्लाह रसूल की जब ताज़ीम का मसला आए ना, तो उसके लिए जो ना अल्फाज बड़े तोल के बोले जाते हैं, बहुत ज़ुबान संभाल के बोला जाता है, और तर्जुमा जब करने की बारी आती है तो तर्जुमा भी बहुत सोच समझ के किया जाता है। अब नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
ये काफिर जो थे वो लफ्ज इस्तेमाल करते थे राईना, तो उससे अल्लाह पाक ने मना कर दिया सहाबा कराम को कि आप सहाबा ने ये लफ्ज आइंदा से नहीं बोलना। क्योंकि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई इरशाद फरमा रहे होते तो सहाबा कराम पूछते थे कि हजूर अलैहिस्सलाम हमारी रायत करें, आप मेहरबानी फरमाएं, दोबारा इस लफ्ज़ को इरशाद फरमा दें, हमें समझ नहीं आई, हमारी तवज्जो नहीं थी, हमें पता नहीं चला, तो आप दोबारा इरशाद फरमा दें। तो वो तो इस नीयत से राईना कहते थे। लेकिन ये जो मुशरिकीन थे, ये जो यहूद थे, ये जो नसारा थे, ये जो मुशरिकीन थे, ये जो गुस्ताख लोग थे, ये क्या करते थे कि उस लफ्ज को थोड़ा सा खींच के बोलते थे राईना। इसका मतलब होता है मेरा, हमारा चरवाहा, राई चरवाहे को कहते हैं, तो राईना, तो इस तरीके से वो बोलते। तो अल्लाह ने उस लफ्ज से भी इनको मना कर दिया। सूरह अल बकरा आयत 104 के अंदर इसका जिक्र है कि अल्लाह फाज़िल बरेलवी तर्जुमा करते हैं कि ए ईमान वालो, राईना ना कहो और यूं अर्ज करो कि हजूर हम पर नजर रखें और पहले ही से बगौर सुनो और काफरों के लिए दर्दनाक अजाब है। तो अब ये देखें, इतनी तकरीम हजूर अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी अर्ज करनी है कि ये उलमाए देवबंद का ये वतीरा है कि इन्होंने पहले कुफरियात बके, इनके काबिरीन ने भी, उसके ऊपर हमारे आला फाज़िल बरेलवी ने और दीगर उलमाए अहले सुन्नत ने उनको समझाया और किताबें लिखी, फतावा दिए कि ये कुफर है, ये तौहीन है। तो इन लोगों ने उन तौहीन को, उन कुफर को नहीं माना, आज तक नहीं माना, उसके ऊपर तवीलात करते चले जा रहे हैं। तवीलात का एक तांता बंधा हुआ और बड़ी बड़ी किताबें मारते वजूद में हैं। एक नमूने के तौर पे मैं आपको तौहीन दिखाता हूँ, अशरफ अली थानवी साहब की, और ये हिफ्जुल ईमान सफ़ा 15 है, दारुल किताब देवबंद है। कहते हैं फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौले ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हजूर की ही क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद उमरो बल्कि हर सबियो मजनून बल्कि जमी हैवानात तो बहाइम के लिए भी हासिल है। अब ये देखिए, ये सरी कुफर है, तौहीन है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो इनके जो मौलाना अशरफ अली साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि देखो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर जितना इल्म है ना, उतना इल्म तो हर जानवर को, बच्चों को और जनाब जमी हैवानात और बहाइम सबको हासिल है। अब ये देखें, जानवरों के अंदर कुत्ते भी आते हैं, खंजीर भी आते हैं और दीगर जानवर भी आते हैं, भेड़ बकरियां आती हैं और हशरातुल अर्ज़ आते हैं, परिंदे आते हैं, सब आते हैं। यानी नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका जो इल्म है, इल्म गैब है, उसको इन्होंने जानवरों के इल्म के साथ मिला दिया। अब यहां इल्मी गुफ्तगू नहीं करते, यहां से थोड़ी देर के लिए इल्मी गुफ्तगू नहीं करते। मैं यहां पे मुखातब हूं सादा लो मुसलमानों से जो जिनके पास एक सतही सा इल्म है। आप हजरात क्या फैसला करते हैं, सुन के बताइएगा कि क्या ये तौहीन नहीं है? आप क्या समझते हैं? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जानवरों के इल्म के साथ मिलाएंगे? और ये मौलाना ने जो किया है, ये तौहीन की या कुफर किया है कि नहीं किया? ये मेरा अवाम से सवाल है, अवाम इसके बारे में फैसला करके बताइएगा। अच्छा, यहां पर एक और नुक्ता बयान करना है कि ये जो इन्होंने हदीस पेश की है, उस हदीस के अंदर उम्मी की डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि उम्मी वो है कि जो कि, बल्कि उम्मी नहीं है, उम्मियतुन है। ये याद रखिएगा, उम्मी नहीं है, उम्मियतुन। अच्छा, ये उम्मियतुन की डिटेल आगे बताई हुई है। वो क्या है कि उम्मियतुन उनको कहते हैं कि ला नक्तुबु वला नहसुबु, जो लिखना नहीं जानते और हिसाब रखना नहीं जानते, जो गिनना, हिसाब किताब रखना, ठीक है जी, नोटों का हिसाब किताब वो नहीं जानते। अच्छा, उम्मी का मतलब ये जो करते हैं अनपढ़,
अनपढ़ यानी पढ़ा लिखा जो ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है जी। तो अब यहां ला नक्तुबु के अंदर तो है कि अनलिखा, अनलिखा जो लिखाई नहीं जानता। वला नहसुबु का मतलब ये हो जाएगा कि अन गिना या अन हिसाब रखा, ठीक है जी। तो अनपढ़ तो यहां कहीं पर भी नहीं है, यानी पढ़ाई लिखाई जो नहीं जानता। यहां पे अगर होता ना कि जनाब ला नकराऊ, ला नकराऊ, तो फिर होता था कि अनपढ़ यानी पढ़ना नहीं जानते। तो उम्मियतुन का यहां पे तर्जुमा और मफहूम वाज़े है कि ये उम्मी वो नहीं है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है। यहां से मुराद वो वाले उम्मी मुराद नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है जी। लफ्ज कभी कभी एक होता है, उसके तराजुम अलग अलग होते हैं, मफहूम अलग अलग होते हैं। और यहाँ पर एक मैं मंतिक का कायदा भी बयान करता चलूँ कि जनाब जब लफ्ज मुतकस्सिरुल माना हो, एक लफ्ज के कई माना हो, तो उसकी फिर चार किस्में बनती हैं। एक मुश्तरक होगा, मनकूल होगा, हकीकत होगा या मजाज होगा। तो मनकूल की फिर आगे तीन किस्में बनती हैं, मनकूल शरई होगा, मनकूल उर्फी होगा या मनकूल इस्तिलाही होगा। तो यहाँ मैं मनकूल शरई की बात करूँगा कि अगर नाकिल अरबाबे शरा हों तो उसे मनकूल शरई कहते हैं। जैसे लफ्ज़ सलाह है, इसका लुग़वी माना तो दुआ है, लेकिन शारे के नज़दीक सलात अरकान मखसूसा को कहते हैं। तो अब उम्मी का लफ्ज़ दीगर कई मानों के अंदर जब इस्तेमाल होगा तो यकीनी सी बात है नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो लफ्ज़ उम्मी इस्तेमाल हुआ उसका तर्जुमा जो अरबाब शरा ने मुतय्यन कर रखा है वही मुराद होगा, और तो नहीं कोई मुराद होगा। और अरबाब शरा ने क्या इसका माना मुतय्यन किया हुआ है, वो ये है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने लिखना पढ़ना सिखाया, दुनिया का कोई उनका उस्ताद नहीं है। तो लिहाजा ये मनकूल शरई होगा, मनकूल उर्फी नहीं होगा, मनकूल इस्तिलाही नहीं होगा। तुम लोगों ने मनकूल उर्फी और इस्तिलाही मुराद ले लिए। हाँ जी, यहां मनकूल उर्फी नहीं होगा, ना ही मनकूल इस्तिलाही होगा। यहां पर एक और मैं उसूल फिक की भी यहाँ पे बात करता हूँ। हमारी असूल शाशी जो फिक की किताब है उसके अंदर भी ये कायदा कुलिया लिखा हुआ है, और ख़ास की बहस के अंदर के फसलुन फिल खासी वल आमी फल खास लफ्ज़ुन वुदिया लीमाना मालूमिन औली मुसम्मा मालूमिन अल्लाह नफरादी का कौलिना फ़ी तखसीसिल फ़र्दी ज़ैदुन व फ़ी तखसीसिन नौई रजुलन व फ़ी तखसीसिल जिनसी इंसानुन। तो ये खास जो होता है, अब ये उम्मी जो लफ्ज़ है ये खास है, तो इसका हुक्म क्या है? हुक्म भी इसी उसूल शाशी के अंदर लिखा हुआ है कि वाह हुक्मुल खासी मिनल किताबी वजूबुल अमली बिही ला मुहल्ला। तो खास का हुक्म किताब के अंदर ये होता है कि उस पर वो वजूबुल अमल होता है, बहर एतबार उस पर अमल करना वाजिब होता है। अगर उसके मुकाबले में कोई हदीस आ जाए तो क्या किया जाएगा? सुनिए, कहते हैं फ़इन काबलहु खबरुल वाहिदी अविल क़ियासी फ़इन अमकनल जमउ बैनहुमा बिदूनी तग़यीरिन फ़ी हुक्मिल ख़ासी युमलु बिहिमा व इल्ला युमलु बिल किताबी व युतरकु मा युकाबिलुहु। तो जो उसके मुकाबले के अंदर आएगा उसको तर्क कर दिया जाएगा। अगर तो कुरान के ऊपर अमल करना मुमकिन हो और उसके मुकाबल आने वाली हदीस पे भी तत्बीक देनी जो है ना मकसूद, और तत्बीक देने से माना एक ही बनता हो तो ठीक है, हदीस को भी ले लिया जाएगा। अगर मुकाबल में आने वाली जो हदीस है वो माने को बदल रही है, या मतलब उसके मफहूम को, कुरान के मफहूम को बदल रही है, तो फिर कुरान पे अमल किया जाएगा, उसके मुकाबल में आने वाली हदीस को छोड़ दिया जाएगा। ये तुम्हारी किताबों के अंदर, तुम्हारे निसाब के अंदर, वफाकुल मदारस के निसाब के अंदर और तुम्हारे मदरसों के अंदर पढ़ाई जाती है। और उसूल फ़िक़ह को भी तुम मानते हो और मंतिक को भी तुम मानते हो। मंतिक से भी मैंने समझा दिया, असूल फ़िक़ह से भी समझा दिया,
اور عقلی اور نقلی دلائل دینے کی کوشش کی، ابھی بھی کوئی نہ سمجھے اور اپنے کفر کے اوپر ڈٹا رہے تو اس کا علاج ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک تم لوگوں کو عقل دے اور عقل سلیم دے، اور ابھی تو بہرحال اس ویڈیو کا میں آپریشن کروں گا، پوری کا کروں گا، اور اس کے اندر جو تم لوگوں نے بلنڈر مارے ہیں یہ مفتی طارق مسعود نے، تو ہر ایک کا میں جو ہے نا وہ علمی طور پہ مواقبہ کرتا ہوں اور محاسبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تم لوگوں کو عقل دے اور کفر سے پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ رب رکھا جی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔